जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमने या ऐसे सुना, सत्संग में सुना था कि एक गरबा 50 समायक के बराबर होता है, तो उसमें क्या लॉजिक है? एक गरबो गरबो एक रमे तो 50 समायक के बराबर है, ऐसे सत्संग में 50 सुना। समय के बराबर है। या तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? यानी लाइक हर स्टेप पे मैं कुछ करता नहीं हूँ, या भक्ति में क्या लॉजिक है? आप पुत्रों को कभी देखा नहीं कि गरबा में, तो उनको कैसे 50 समायक का लाभ मिल जाता है? बराबर છે। और कहीं मारा सीनियर सिटीजन है जो ગુજરાતી સમજમાં આવે ને? हाँ आवे पर बोल ही नहीं सके, શું કહો છો? बोल नहीं सकते हैं। આ બોલ નહીં શકતે લેकिन हाँ। ગુજરાતી સમજમાં આવે ને? हाँ या બરાબર છે। ગરબાનો આકાર કેવો હોય છે? શું નામ બેન તમારું? चंदाबेन। ચંદાબેન, ગરબાનો આકાર કેવો હોય છે? ચોરસ હોય છે, લંબચોરસ હોય છે કે ત્રિકોણ હોય છે? स्क्वायर, सॉरी राउंड રાઉન્ડ હોય છે। या सर्कल। રાઉન્ડ એટલે એને બીજા શબ્દમાં શું કહેવાય? सर्कल, गोल। ગોળ એટલે 360 ડિગ્રી થયું। ओके। 360 ડિગ્રી થયું। વાત સમજ્યા ને? હવે 360 ડિગ્રી થયું તમારે, તો એક ગરબો કરે તમારે, તો સામાયિક એટલે બીજું કશું નથી હોતું। સામાયિક એટલે તમારી જે સામે જે સંયોગ આવ્યો, વાત સમજ્યા ને? એટલે એક જવાબ આવ્યો કે ના આવ્યો? તમારી સામે એક સંયોગ એટલે એક જવાબ આવ્યો કે ના આવ્યો? તો એ જવાબ ઉપરથી રકમ ઉપર જાય અને રકમ સુધારી દે, અને રકમ ઉપરથી પછી જવાબ આવે, એટલે આખો 360 ડિગ્રી પૂરું થાય તમારે બધું વસ્તુ, એટલે એને સામાયિક કહેવામાં આવે તમારે। એટલે આ ગરબો છે એ 360 ડિગ્રીનો છે તમારે બધી વસ્તુ। વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો કે ગરબો કરો તમારે, તો કે ભાઈ તમારી સામે સંજોગો બધા આવે છે કે નથી આવતા તમને? આવશે। તે નચાવે છે કે નથી નચાવતા, કે સ્થિર રાખે છે? નહીં, સ્થિરતા ના રાખે। શું કહે છે? સ્થિર ના રાખે, એડજસ્ટ થવું પડે। સ્થિરતા ના રાખે તમારે। હા, વાત સમજાય ને? એટલે ભાઈ સ્થિર થવું પડે કે ના થવું પડે તમારે? અંદરથી સ્થિર થવું પડે। અંદર બહાર ને હું ખાલી એટલું સ્થિર થવું કે ના થવું ઓબ્જેક્ટિવ પૂછું છું। નહીં, બહારથી સ્થિર કેવી હું ઓબ્જેક્ટિવ પૂછું કે સ્થિર થવું પડે કે ના થવું પડે? અંદર બહાર મેં નથી પૂછ્યું તમને। સ્થિર થવું પડે કે ના થવું પડે? રમવા में स्थिर कैसे, यानी રમવા કરતી વખતે स्थिर कैसे? તમે આ બધા સંજોગો તમને ગરબા કરાવે છે, નચાવે છે કે નથી નચાવતા? હા, નચાવું છે। તો પછી એમાં સ્થિર થવું પડે કે ના થવું પડે? હા, થવું પડે। એમાં અંદરથી બહારથી એની જોડે મતલબ જ નથી। સ્થિર થવું પડે કે ના થવું પડે? યા વાત સમજે ને? યા હવે સ્થિર થવાનું છે તો સમજવું પડશે કે નહીં સમજવું પડે? યા તો કેવી રીતે સ્થિર થવાશે? એક વર્તુળ કેવી રીતે પૂરું થશે? એક સર્કલ કેવી રીતે પૂરું થશે? સ્થિર થવું હોય તો એક સર્કલ કેવી રીતે પૂરું થશે? મને ખબર નથી। તમારે સ્થિર થવું છે કે નથી થવું? થવું છે। બરાબર છે ને? હવે સ્થિર થવું છે, વાત સમજે ને? કે હવે એક દાખલાથી લઉં કે હું તમારી સામે બેઠો છું, તમે મારી સામે બેઠા છો, હું તમને જોઉં તો સીધા દેખા કે ઊંધા દેખાશો? સીધા દેખાય। હવે દિવાલ તરફ દ્રષ્ટિ કરું તો દેખાશે કે નહીં દેખાય? નહીં દેખાય। હવે દિવાલ તરફ દ્રષ્ટિ રાખીને હું આમ વળું, પણ દ્રષ્ટિ દિવાલ તરફ છે, દેખાશે કે નહીં દેખાય? નહીં દેખાય। નહીં દેખાય। હવે હું દિવાલ તરફ દ્રષ્ટિ રાખું છું ને 180 ડિગ્રી વળું છું, હા, તો દેખાશે કે નહીં દેખાય? 180 ડિગ્રી। ઊભો થઈ જાય मुर्गा मुर्गा दीवाल की ओर दृष्टि है। हाँ, फिर दिखेगा। हाँ, क्या सीधा देखाશે કે ઊંધા દેખાશે? ઊંધા 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 દેખાશે। હા, હા સમજ્યા ને? ઊંધા દેખાશે। હવે એમ થાય કે 5 સેકન્ડ પહેલા તો શું નામ ભૂલી ગયો તમારું? ચંદાબેન। ચંદાબેન। 5 સેકન્ડ પહેલા ચંદાબેન કેટલા સરસ મજાના સીધા હતા, હા, અને એકદમ બગડી ગયા, આવડા થઈ ગયા। હા, એટલે હું જે વળ્યો છું 180 ડિગ્રી વળ્યો છું એ સીધો થઈ જઈશ, અને દિવાલ તરફ દ્રષ્ટિ છે ફેરવી દઈશ ને તમારા તરફ દ્રષ્ટિ કરીશ, તો સીધા દેખાશે કે ઊંધા દેખાશે? ઊંધા દેખાય। તમારા તરફ દ્રષ્ટિ કરું હા, છું, તો સીધા 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 દેખાશે। હવે મને ઊંધા સીધા દેખાયા, સાચું છે કે ખોટું છે? ખોટું। મને ચંદાબેન ઊંધા દેખાયા અને સીધા દેખાયા, સાચું છે કે ખોટું છે? સચ। चंदाबेन मेरे को उल्टा भी दिखाई दिया और सीधा भी दिखाई दिया, सच है कि गलत है?
दोनों तरफ से सच दिख रहा है। सच है, सीधा भी दिखाई दे वो भी सच है, और उल्टा दिखाई दे वो भी सच है, बराबर है। बराबर है। अब मेरे को चंदाबेन उल्टा दिखाई देते थे और सीधा दिखाई देते थे, बराबर है। लेकिन आप उल्टे सीधे थे, सीधे उल्टे थे कि सीधे ही थे, सीधे थे सीधे थे, सीधे ही थे। बराबर। अब ये पूरा ये समझ लिया कि नहीं समझ लिया? बिल्कुल तो बराबर। ये समझ क्या कहना चाहता है, उससे क्या वाक्य रत्न बनती है? कि संजोग गलत नहीं, हमारी दृष्टि में कुछ। ये संजोग गलत नहीं है, मेरी दृष्टि सही नहीं है। राइट। चंदा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल यानी आपकी दृष्टि ऐसी सृष्टि बनानी पड़ती है कि बन जाती है, बन जाती है। बन जाती है। हाँ। अब ये आंसर है, अब एक दूसरा आंसर इसमें कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? यही आंसर में दूसरा भी आंसर है, क्या कहना चाहता है? जैसे दूध में से दही बनता है, दही में से मक्खन बनता है, मक्खन से में घी बनता है, तो यही आंसर में कि जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि बनती है। तो दूसरा आंसर क्या कहना चाहता है? आपको स्थिर रहना है कि नहीं रहना है? रहना है। अब तो मैं स्थिर के लिए आपको प्रश्नोत्तरी करता हूँ। ओ। और एक ये जो गरबा करते हैं वो सर्कल है, हाँ। तो सर्कल क्या है वो मैं इसमें समझाना चाहता हूँ। ओके। समझ में आने? तो दूसरा आंसर क्या कहना चाहते हैं? हाँ। मैं उल्टा था उस हिसाब से आप उल्टा ही दिखाई देते थे, मैं सीधा था उस हिसाब से आप सीधा ही देखा देते हैं। वेरी ट्रू। आप उल्टे सीधे नहीं थे, आप तो सीधे ही थे, सीधे ही थे, सीधे ही थे, सीधे ही थे। या। यानी जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि बन जाती है। लेकिन वो आंसर और दूसरा क्या आंसर देना चाहता है, कहना चाहता है? वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वो दूसरा नहीं आता है, विजन में नहीं आ रहा है, विजन में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, दृष्टि में नहीं आता है। दृष्टि में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत बड़ी बात बनी, बहुत बड़ी बताई। ये ऐसा कहना चाहता है कि सारा जगत अपने स्वभाव में है। ओह या। बात समझ में? सारा जगत अपने स्वभाव में, क्योंकि आप उल्टा सीधा नहीं थे, नहीं। आप सीधे थे, सीधे थे, सीधे थे, सीधे थे। मैं उल्टा था उस हिसाब से आप उल्टा ही देखा देते थे। हाँ। मैं सीधा था उस हिसाब से आप सीधा ही देखे देते थे। हाँ। बात समझ मैंने? या। यानी सारा जगत अपने स्वभाव में है, तू तेरे स्वभाव में नहीं है। वेरी ट्रू। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये समझ में आ गया तो किसको सुधारना है? स्वयं को। क्या बोलते हैं? खुद को। खुद को सुधारना। ये समझ में आ गया तो धर्म कहाँ है, बाहर है कि भीतर है? भीतर है। भीतर है। समझ में आ गया कि नहीं आया? धर्म बाहर है कि भीतर है? तो कि भीतर है। ये समझ में आ गया तो किसको सुधारना है? खुद को सुधारना। ये समझ में आ गया तो आपकी गलती दिखाई देगी क्या औरों की गलती दिखाई देगी? दिखाई देगी खुद की। आपकी गलती दिखाई क्या औरों की दिखाई देगी? नहीं, खुद की दिखेगी। खुद की दिखाई देगी। समझ में आया ना? हाँ। तो ये पूरा सर्कल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये मैंने वो जो आपको प्रश्न करके पूरा सर्कल बनाया कि नहीं बनाया? हाँ। तो ये सर्कल में अभी अतिक्रमण कितना होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर प्रतिक्रमण किसका कितना करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? देखना और जानना, जानना और देखना हुआ कि कुछ प्रतिक्रमण करने का हुआ कि सामायिक करने का हुआ? नहीं होगा, क्योंकि विपरीत चलता ही नहीं है, जो स्टेपिंग विपरीत होती होता है। नहीं है, यानी देखना जाना हो गया। हाँ, एडजस्ट होता है तो कि एक ही गर्भे में आपको 50 सामायिक का फल मिल जाता है। वो आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ। ये सर्कल हो गया। हाँ। उस हिसाब से मैं प्रश्नोत्तरी बोलता हूँ। ओके। प्रवचन के व्याख्यान के कथा में उस हिसाब से नहीं करता हूँ। मैं बहुत करता था, बनिया था। ओके। साधु महाराज व्याख्यान देता कि नहीं देता है? बहुत व्याख्यान देता था, लेकिन मेरी बोलती बंद कर दी थी दादाजी ने। उसने बता दिया धर्म बाहर नहीं है, भीतर है। राइट। हाँ। अब मैं समझ में आ गया कि धर्म भीतर है, तो मैं कितना बोल पाऊंगा? अब बोलना है तो अहंकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। हाँ। अब अहंकार तो दादा ने लिया, तो मैं कैसे बोलूं? या। निमित्त नहीं मित्त दिखाओ, बटन दबाओ तो लाइट होगी, बटन दबाओ तो लाइट बंद होगी। राइट। देखना जानना हो गया। तो ये आंसर मैंने पूरा 180 डिग्री वाला आंसर दिया कि 360 डिग्री वाला आंसर दिया? 360 वाला। तो ये सर्कल हो गया कि नहीं हो गया? या। तो एक गर्भे में 50 सामायिक का फल मिलता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या। बस इतना ही है। तो मतलब रमती वक्ते भाव कुछ भी हो, मोस्टली तो भक्ति भाव होता है, एडजस्ट होता है। तो भी ये नहीं माना भाव कोई भी हो। नहीं, भाव नहीं है। वो चंदाबेन गर्भे करते हैं और आप उसको चंदाबेन को देखने वाले और जानने वाले हैं। ओके। बात समझ में आने? ये ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, देखने का बस। आप गरबा नहीं करते, चंदाबेन करते हैं। ओके। आप तो देखने वाले जानने वाले हो गए। ओके।
आप सुधारने वाले नहीं है, नहीं सुधारने वाले नहीं है, बिगड़ने वाले नहीं है, नहीं बिगाड़ने वाले नहीं, आप तो देखने वाले जानने वाले हो गए। राइट। पहले तो आप गरबा करने ही जाते थे, या और गरबा करते पहले तो बहुत तैयारी करते थे। या ये अभी गर्मी की सीजन है कि नहीं है, तो बाजार में वो चानिया चोरी बहुत बिकेगी, या बहुत तैयारी करते हैं। ये तैयारी करने का नहीं आता है। ये तो अपने आप को जानते नहीं है, पर को अपना स्वरूप मान लिया, और 4 गति और 84 लाख योनि में घूमने का गरबा चालू ही हो जाता है। जब तक जीन और जिनेश्वर नहीं मिलता है, घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, गरबा करते ही रहो, गरबा करते ही रहो। ये दादा भगवान ने आपका घूमने का बंद कर दिया है। चंदा जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा। समझ में आने तो ये मैंने आपको आंसर 360 वाला दिया। अब आंसर 360 वाला कब बनेगा? प्रश्न और उत्तर होगा, उत्तर और प्रश्न होगा तो 360 बनेगा, और प्रश्न नहीं होगा, समझ में आने तो मैं निदान नहीं कर पाऊंगा, और मैं कोई सब्जेक्ट पे बोलूंगा लेकिन आपकी वो बीमारी या रोग है नहीं, तो आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मजा नहीं आया। सही बात है। और प्रश्नोत्तरी में तो आपका सब्जेक्ट है, उसमें मैं बात करता हूँ, आपको ही केंद्रित करके बात करता हूँ। समझ में आने राइट। तो यानी आपने 180 डिग्री को 360 डिग्री नहीं बोला, 360 डिग्री को आपने 360 डिग्री बोला। ये आपको समझ में आ गया कि सारा जगत अपने स्वभाव में है, तू तेरे स्वभाव में नहीं है, तू तेरे स्वभाव में आ गया तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। यानी फिर ज्ञानी पुरुष का वाक्य निकला कि सर्व उपाधि नु कारण मुआ तू जी छू। या बात समझे ने? या उस हिसाब से कहावत बनी कि तू सुधर्यो तो सारू जगत सुधर्यु। या जगत ने सुधारવાનું નથી। बात तो बहुत उत्तम है, अति उत्तम है, लेकिन जो अंतराय आता है, बुद्धि बहुत तेज है, जो उससे मतलब ही नहीं है इसको। नहीं, बुद्धि नहीं, दूसरे की चुगली मार ही देती है। तो वो मारने वाला अलग है और आप अलग है, ओके। वो दोनों अलग है। ये प्रकृति गुण धर्म है। हाँ। और ये आपने समझ सही हो गई कि आत्मा का गुण खुला हो गया, दोनों का गुण धर्म ही अलग है। ओके। પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી, મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી। ગુણે કરી બંને સર્વથા જુદા જ છે। हाँ હા સમજે? જુદા રહેવાના ને જુદા હશે જ તમારે। हाँ એટલે આપણે આ રીતે જે બુદ્ધિને આપણે લેવા દેવા જ નહીં બધી વસ્તુ। या એ જ્ઞેય થઈ ગયું ને તમે જ્ઞાતા થઈ ગયા, દ્રશ્ય થયો તમે દ્રષ્ટા થઈ ગયા। हाँ या ચંદાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? बहुत बहुत उत्तम बात है। लेकिन एक और ऑब्स्टेकल आता है कि अभी की स्थिति ऐसे लगती है कि कुछ पल के लिए अनुभव होता है जुदापने की, तो दादा भगवान के प्रति अहो अहो होता है कि क्या ज्ञान मिला है, फिर तन्मयकार हो जाते हैं, तो जुगनू की ये तरह जो होता है। तन्मयकार होता है वो शुद्धात्मा होता है कि चंदाबेन होता है? चंदा बहन होते और हैं। चंदन और तन्मयकार नहीं होता है वो चंदन बेन होता है कि शुद्धात्मा होता है? शुद्धात्मा तो निर्लेप है। तो शुद्धात्मा निर्लेप है, वो होता है नहीं, वो तो चंदाबेन को लागू पड़ता है। आप चंदाबेन है ही नहीं। ओके। व्यवहार दृष्टि से मैं चंदाबेन हूँ, हाँ यानी है ही नहीं। हाँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ, ये नहीं है फिर भी है ही, हाँ हाँ बस उतना ही है। या मेरे को भी आगे की बातें पल्ले पड़ती नहीं है। आप जो बोलते हैं ना वो मेरे को पल्ले नहीं पड़ती है। पर मेरे को बुद्धि और उसमें लेने देने ही नहीं है, वो दोनों अलग है। समझ में आने? दोनों पर अलग आपका है। आपका साइंस समझ में आया जो आपने बताया। एक और क्वेश्चन से रिलेटेड कर हाँ पूछो। जैसे हम बोलते हैं मन, यानी एकदम पता चलता है मन किसको बोलते हैं, ठाट को। बुद्धि बोले तो पता चलता है किसको बोलते हैं, जजमेंट को, जो कमेंट्स पास करती है। और चित्त बोले मन चित्र। पर जब ये हम आत्मा बोलते हैं, शुद्धात्मा बोलते हैं, तो जो भी गुण बोलते हैं तो उसमें अनुभव नहीं होता, लगता है जैसे आरोप कर रहे हैं अपने ऊपर जो भी गुण के ना। तो हमारी वो कौन सी कचाश है जो रियल स्वरूप होते हुए भी हमको आत्मा के गुण ऐसे लगता है कि हम आरोपित कर रहे हैं, तो वो कौन सी तो कचाश है? क्या है कि भगवान जो आत्मा का गुण है ना वो आरोपित नहीं है, नहीं। वो साथ में रहने वाले गुण है। या और दूसरा आता जाता है ना हाँ वो अन्वय गुण है, ओके वो अपने व्यतिरेक गुण है। ओके वो साथ में रहने वाला नहीं है। क्रोधमान मायालोभ पे साथ में रहने वाला नहीं है। राग द्वेष है वो साथ में रहने वाला नहीं है। राइट वो व्यतिरेक गुण धर्म है। राइट और वो साथ में रहने वाला है। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला। समझ में आने? वो अरूपी है। या
वो इंद्रियों से समझ में नहीं आएगा, वो इंद्रियों से समझने जाएंगे हाँ। तो आपको लगा कि मैं तन्मय करोगे, मैं है कोई, ये हो गई, ये हो गई, ये वो रहता ही रहेगा, उसमें आंसर आपको मिलेगा नहीं, ढूंढते रह जाएंगे। राइट। मैं तो आपकी दृष्टि बराबर कर देता हूँ, बस वो दृष्टि सही हो गई तो दृष्टि से देखेंगे तो सब दिखेगा आपको। सही बात है। समझ में आने? सही बात है। सही बात। आपको दिखता नहीं है तो कहाँ जाएंगे? होटल में जाके डॉक्टर के पास जाएंगे? दादा भगवान की शरण में जाएंगे। आपको उसके- दिखता नहीं है तो होटल में जाके डॉक्टर के पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। फिर वो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे कि हार्ट के पास जाएंगे? नहीं दिखता है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। क्या बोलते हैं? आंखों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, आपको दिखता नहीं है हाँ। तो ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे कि हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं, जो आंखों के डॉक्टर। किसके? आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? श्योर। फिर वहां आपकी कंप्लेन करेंगे, या वहां आपकी कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन सॉल्व करेगा कि सॉल्व नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। करेगा ही करेगा। करेगा ही कि नहीं करेगा? हाँ, या। तो उसने देखा कि भी आपकी उम्र क्या है कि 50 साल की है, यानी बेताला आ गया है। ओके। वो एक फ्रेम निकालेगा आपके सर के आगे, वो लगाएगा, फिर अलग अलग ग्लासेस लगाएगा, फिर बोलेगा भाई ये कितना दिखता है, दिखता है, ये बराबर है। फिर नंबर लिख के देगा कि भाई चश्मा वाला के वहां जाएंगे, वो चश्मा वो नंबर का निकाल दे देंगे, फिर दिखेगा। अब वो चश्मा पहनेंगे नहीं तो नहीं दिखेगा, हाँ हाँ। और चश्मा पहनेंगे तो दिखेगा, बस उतना ही है, उसमें बीच वाला भाग ही नहीं है। या या चंदा जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ- आपको नहीं दिखता है, आरोप लगता है, तो आपने जो चश्मा दिया है वो नहीं पहना है, बस उतना ही है। वेरी ट्रू। सही बात है। और आपको दिखता है तो आपने, आपको जो चश्मा निकाल के दिया है तो उससे दिखेगा। राइट। या यहाँ आरोप नहीं है, वो सही है। या बात समझे कि ना समझा? या हम्म। एक और क्वेश्चन है, हाँ, पूछते हुए क्षमा याचना पहले ही कर देते हैं, और थोड़ा भय भी है कि कहीं विराधना नहीं हो जाए, हम्म। और सिर्फ मात्र ये है कि अपनी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ज्ञान ये है कि हमेशा दादा बाबा ने हर जगह एडजस्टमेंट होना सिखाया है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि अपना जो अज्ञान होता है ना, उससे भी एडजस्ट करना सिखाते हैं कि एक्चुअली हर जो अज्ञान है, बोलते हैं डिस्चार्ज है, ये है, जैसे फ्रीडम। और हम जो क्रमिक मार्ग में ना इतना बहराग, ये वो एकदम जैसे आग लगा देते थे कि अरे वो अज्ञान की तरफ जाए ही नहीं, हो सकता है सप्रेस हो जाए, नाश नहीं हो जाए। तो कहीं टाइम लगता है कि अपने पुरुषार्थ में इतना तीव्रपना नहीं है, जो डोज तीव्रपना शुद्धात्मा के प्रति चाहते हुए भी हैं कि हम शुद्धात्मा में ज़्यादा रहें, उसका चिंतन मनन ज़्यादा जाए, फिर कोई ना कोई संजोग आता है जो हम बाहर कंपल्सरी है नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि बाहर तरफ ले जाती है। तो हम ऐसा कोई हमारे लिए अभ्यास है जो ओवरकम करें अपने बुद्धि और संजोगों को, जो अपने स्वसत्ता में रहें। हाँ, आपके वहाँ घर पे चोर आ जावे और चंदा बहन सर पे दंबुक लगा दे, दंबुक बोलते कि बंदूक बोलते हैं? बंदूक बोलते हैं। बंदूक बोलते हैं। बंदूक लगा देवे और बोले कि जो है सब दे देना, हाँ। समझ में आना? नहीं देंगे तो आपको मार डालेंगे। राइट। अब आपने जो अच्छा काम करके वो कमाया है, राइट। अब देने का मन तो नहीं होता है, लेकिन नजर घुमाएंगे राइट। और बचने का आसार नहीं है तो क्या करेंगे? दे देंगे। तो एडजस्टमेंट हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ से लाना? बुद्धि कहाँ आपको तंग करती है? राइट। हाँ। बुद्धि कहाँ तंग करती है मेरे बताओ? व्यवहार में तंग नहीं करती है। व्यवहार के नहीं, मैं बोला आपको बुद्धि कहाँ तंग करती है? वो बच्चे ने मांगा तो नहीं दिया, हाँ। और इसने मांगा तो दे दिया, कोई सगा वाला कोई नहीं है, दे दिया। क्यों दे दिया? या क्यों दे दिया? या अपनी जान ज्यादा प्यारी है। हाँ, या समझ में आने? या जान है तो जहान है। या राइट। लौट के बुद्धू घर आया, आप है तो बाहर है। राइट। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, या वहाँ बुद्धि काम नहीं करती है, राइट। बुद्धि अलग है। या वो ज्ञेय और आप ज्ञाता है, बुद्धि बार बार वही लेके आते हैं। Right. बुद्धि इनडायरेक्ट प्रकाश है, और Right. दादा ने आपको डायरेक्ट प्रकाश दे दिया है। या बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। या एक घर में आग लगती है, बचने का असर नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ 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 कोई भी कोशिश करके निकलने का कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। वो अभी भूकंप आया था ना 2000 में, आके कब आया था भूकंप? हाँ और भूकंप आया था हाँ तो वो पैरालिसिस वाले बहुत लोग थे, हाँ। तो 12वें मंजिले पे रहते थे, और ये भूकंप आया ने तो पैरालिसिस वाला चलने लगा। हाँ। ये आपको मालूम है? या
ये पेपर में आया, वो उसकी वीडियो उतारी, हाँ, वहां कहाँ बुद्धि काम करती है बताओ? बस ऐसा ही जोश ज्ञान के लिए क्यों बस नहीं आता? उतना ही है, तो ये उसका महत्व है, ज्ञान का महत्व है। वेरी ट्रू, वो विनाशी चीजों का महत्व है, उस हिसाब से आपको बुद्धि तंग करेगी। वेरी ट्रू। और आत्मा के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, वो आरोप है, आरोप है, आरोप कर दे। हाँ, और जो आरोप वाला है वो आपको निश्चय लगता है कि वो कायम का है, कायम का है, बस वही है। हाँ। तो उस तरह की बुद्धि है, तो आप विकल्प वाला प्रश्न करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, तो गरबा घूमते ही रहेंगे, वेरी ट्रू, सामयिक नहीं हो पाएगा। वेरी ट्रू। संजय जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। मतलब घर में चोर भेज देंगे तो बुद्धि बुद्धि हैरान नहीं करेंगे, कायम का बोल देंगे। या, सरयू बहन भेज देना चंदा बहन के वहाँ, बुद्धि तंग नहीं करेंगी। वो आरोपित वाला आत्मा है कि दरअसल वो समझ में आ जाएगा, भेज देना है, हर रोज अलग अलग भेजना। चंदा बहन बराबर है ना? बुद्धि बहुत तंग करती है चंदा बहन की। बहुत करती है, बहुत करती है कि दुख ये होता है कि स्वसत्ता में बोलते हैं ना, जैसे कबीराज का बोलते हैं ना, कोई अंग शरीर का कट जाए तो एक एक पल कैसे जाता है, दुख नहीं होता कि आत्मा के सिवाय क्यों जाए, कि इतना कुछ तो कंपल्सरी बाहर फाइल नहीं है और कोई बाहर रोकने वाला नहीं, अंदर का जो अज्ञान बुद्धि इतना क्यों इंटरटेन करती है और स्वसत्ता छोड़ देती है। ये क्या है, अज्ञान और ज्ञान दोनों अलग चीज नहीं है। ओके, उपयोग चेंज हो गया तो वही ज्ञान अज्ञान हो जाता है, ओके, और उपयोग चेंज हो गया तो वही अज्ञान ज्ञान हो जाता है। दोनों अलग चीज नहीं है। ओके, ओके, बात समझे ने? ओके, अंधेरा उजाला दोनों अलग चीज नहीं है, हाँ, समझ में है ने? हाँ। बहिर्मुख दृष्टि हो गए तो अंधेरा हो गया, हाँ, अंतर्मुख दृष्टि हुई तो उजाला हो गया। यानी अंधेरा और उजाला दोनों अलग चीज नहीं है। तो भ्रांति से लगता है कि अलग है, या, सामी भाव से लगता है कि अलग है। हाँ, हाँ, तो मैं चंदा जी हुए बहिर्मुख दृष्टि है, या, और व्यवहार दृष्टि से मैं चंदा जी, और निषेध दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, या, तो अंतर्मुख हो गया तो उजाला हो गया। या पर अभी भी निश्चय में बहुत कच्चाश है ना, जो नहीं कचास ये तो मान लेते हैं आपके, कोई कचास नहीं है। कोई अभी आपने बोला ना दे दिया, कहाँ कचास है मेरे को बताओ? या, कोई सगा वाला नहीं है, वो चाचा मामा है कोई तो नहीं, दे दिया सब आपको। अब 50 साल निकालेगा कैसे आगे? वो तो दादा भगवान ने भी कई बातों में सिखाया कि मोक्ष में जाना है तो जमा नहीं, करो। दादा भगवान को बीच में क्यों डालते हैं? अभी तो आपको बुद्धि तंग करती है, दादा भगवान को बीच में लाते हैं। नहीं, तो फिर बुद्धि को बीच में लाते, फिर दादा भगवान को बीच में लाते, तो अवट दशा मेरे को मुज्जा देते हैं। नहीं, 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 मतलब जो जहाँ नहीं, जहाँ एडजस्ट बुद्धि नहीं होती थी वहाँ दादा भगवान का ज्ञान हो हेल्पफुल है कि मोक्ष में जाना है जमा दादा करो। भगवान का ज्ञान हर जगह पे हेल्पफुल है, कोई जगह पे प्रॉब्लम करने वाला ही नहीं है। वो तो है, वो तो है। आपके ऊपर दिखेगा कि आपके ऊपर बॉम्ब पड़ता है तो भी आपको डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, शंका नहीं होगी, आकुरता व्याकुरता नहीं होगी। जो मरने वाला था ने वो तो दादा भगवान को दे दिया। कौन मरता है? आत्मा मरता है कि अहंकार मरता है? अहंकार मरता है। तो जन्मता कौन है? अहंकार जन्मता है कि आत्मा जन्मता है? अहंकार जन्मता है। तो दादाजी को दे दिया। अभिषेक क्या सब क्या डरने की बात रही? हाँ, कहाँ बुद्धि रही? या, अहंकार है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है। या, अहंकार है तो राग द्वेष और क्रोध मान माया लोभ है, अहंकार तो चला गया। या, बात समझ में है कि नहीं? आपने दादा को क्या दिया? अहंकार और ममता दे दिया, मैं और मेरा दे दिया, और बाकी तो आपके पास ही है आत्मा। तो अब उसका उपयोग नहीं करते तो क्या करना है? चश्मे वाले ने चश्मा निकाल के दे दिया, लेकिन वो कबाट में रखेगा तो नहीं दिखेगा। या। आपका सत्वचन की हमने अहंकार दादा भगवान को दिया, दे दिया पूरा 100% दे दिया। लेकिन હું किस મન વચન કાયા મારું થતા મારા નામની સર્વમાં ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પૂર્ણ સુચરણમાં समर्पण करूं पर છું। बुद्धि कहाँ लेके आती है अहंकार को जो फिर भोगट दिलाती वो तो कृपा से दिया है, उस हिसाब से वो अज्ञान प्रज्ञा का द्वंद्व है। आपने अपने आप पुरुषार्थ किया तो ये दिक्कत नहीं आती। नहीं, राइट, बात समझ में आया कि नहीं आया? कृपा से दिया है। सही बात वो अभी आपको आत्मसात करना है तो प्रश्नोत्तरी के जरिए करने का है। लेकिन निश्चय ही से बोलता है कि मेरे को बुद्धि तंग करती है, मेरे को बुद्धि तंग करती है, मेरे को बुद्धि तंग करती है, या, क्या कुछ करती है, वो अलग ही है। या, बात समझ में आया कि नहीं है? वो अलग ही है। नहीं, लेकिन एक लक्ष्य रखते हैं कि कोई फाइल कंपल्सरी बाहर नहीं है तो शुद्ध उपयोग में एटलीस्ट 7 घंटे तो जाना चाहिए। शुद्ध शुद्ध उपयोग में उपयोग आप किसको समझते हैं चंदा जी?
जो आत्म चिंतन आत्म वो दृष्टांत दे के बोलो, मेरे को भाई ये समझ में नहीं आता, दृष्टांत दे के बोलो, कोई दाखला दो। मतलब अपने जो स्वाध्याय में रहे, स्वसत्ता में रहे, तो उसको स्वाध्याय में लेकिन रहे, नहीं, वो दृष्टांत नहीं है। तो क्या सही चंदा जी आप क्या पढ़े हैं? बीकॉम? बीकॉम पढ़े, साइंस के स्टूडेंट नहीं है, नहीं। लेकिन वो 8वीं 10वीं कक्षा 7वीं कक्षा में आता था, वो H2 और वातावरण इकट्ठा होता तो क्या बनता है? वाटर। वाटर बनता है, वो तो मालूम है, कॉमर्स वालों को मालूम है, वो तो मेरे ख्याल से साइंस वाले को भी मालूम था। थोड़ा हंसाता हूँ ना सरयू बहन। हाँ, अभी अभी मेरे को माइक मिलेगा। એટલા વર્ષ જૂનું યાદ છે એમને એવું કહેવાય. H2 और वातावरण इकट्ठा हो तो पानी बनता है, और कुछ बनता है? पानी ही बनता अभी वो आपको मिले और भगवान को मिले तो भगवान भी पानी बनाएगा कि और कुछ बनाएगा? पानी बनेगा। बात समझ में आ के नहीं है? तो ये मैंने आपको प्रश्न किया, वो क्या कहना चाहता है, बोलो। साइंस समझाना चाहता है, जो लॉजिक है, जो आपको H2 और वातावरण देते तो पानी बनाते, भगवान को भी H2 और वातावरण देते तो पानी बनाते कि कोको कोला बनाता है? नहीं, वाटर बनाते हैं। यानी भगवान की भी इतनी सत्ता है और आपकी भी इतनी सत्ता है। या समझ में आया? ये समझ लिया कि नहीं समझ लिया? समझ लिया। भगवान भी पानी बनाता है, कोको कोला नहीं बनाता है, पेप्सी नहीं बनाता है, और आप भी पानी बनाते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है? अभी डर रहेगा ये बात समझ में आने के बाद? नहीं। भगवान का डर रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा। तो स्वभाव में आ गए क्या विभाव में आ गए? स्वभाव में है। स्वभाव में आ गए, बस इतना ही है। या लेकिन अपने इस तरह से तो कैलकुलेशन ही नहीं किया है, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ के पागल बन गए। सच्ची बात है। H2 और वातावरण इकट्ठा होता है, आप भी पानी बनाता है और भगवान भी पानी बनाता है। अब किसका डर रहेगा? अपनी गलतियों का डर रहेगा। राइट। समझ में आने कि जैसे सत्संग में आना है, थोड़ी देरी हो गई तो गाड़ी जल्दी से चलाई, किसी को टक्कर मारी, कोई है नहीं, निकल गया। अब यहाँ आएंगे, आधे घंटे के बाद पुलिस आएगा तो किसको डर लगेगा? ये सबको लगेगा कि चंदा जी को ही डर लगेगा? सबको तो गलती का डर लगेगा, लेकिन भगवान का डर लगेगा नहीं। चोरों का डर लगेगा नहीं। खूनी का डर लगेगा नहीं। आतंकवादी का डर लगेगा नहीं। देखो, निर्भय निसंग बना दिया, अभयदान मैंने आपको दे दिया। बोलो, या खाली H2 और वातावरण से आपको अभयदान दे दिया। या बात समझ में है ना? लेकिन इस तरह से अपने मूल्यांकन ही नहीं किया कि H2 और वातावरण आपको मिले या भगवान को मिले, वो पानी बनाएगा और कुछ बनाएगा नहीं। यानी आपका स्वतंत्र जगत है, आपके जगत में भगवान का कोई दखा दखल नहीं है। आपको छूटना है तो भगवान भी आपको बांध नहीं सकते, और आपको बंधना है तो भगवान भी आपको छुड़ा नहीं सकते हैं। यानी आपका स्वतंत्र जगत हुआ। ये समझ में आ गया तो आप स्वसत्ता में आ गए कि पर सत्ता में आ गया? अब ये समझ में आ गया तो मन बुद्धि चित्त अहंकार रहेगा कि चला गया? चला गया। ये समझ में आ गया तो अज्ञान रहा कर चला गया? चला गया। ये समझ में आ गया तो राग द्वेष रहा कर चला गया? चला गया। ये समझ में आ गया तो क्रोध मान में रह कर चला गया? चला गया। अब कौन तंग करेगा आपको? यहाँ वातावरण में जल्दी इजी हो गया। इजी आपने हो बता गया? दिया, घर में पता नहीं, एक एक संजोग ने जब ये फिसल जाते हैं अपने स्वपद से तो दुख होता है कि नहीं, जो जाते ही नहीं है। ये आत्मा तो टंकोत किरणवत ऐसा है। बात समझ में? चंदा जी टंकोत किरणवत नहीं है। या बात समझ में? ये जगत के जो भी दिखता है, या चंदा जी वैसे तो आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, थोड़ा पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी छेड़ देता हूँ वाक्य। ये जगत के सारे सहयोग दिखते हैं, वो मिक्सचर है कि कंपाउंड है? मिक्सचर है। मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। या तो क्या डरने का? अब इकट्ठा होगा फिर भी आप टंकोत किरणवती है। ओके। चाय बनाते कितने कितनी चीजें अंदर इन्वॉल्व होती है। बहुत सारी। दूध है, चीनी है, चाय की पत्ती है, मसाला सब है कि नहीं है? अब कुछ दिखता नहीं है, यानी उसका अस्तित्व चला गया नहीं है। दूध डालते हैं तो जब चाय पीते तो कितना दूध डाला वो मालूम पड़ता है, पानी डालते हैं तो कितना पानी है मालूम पड़ता है, चीनी डाला तो कितनी चीनी है मालूम पड़ता है, चाय की पत्ती डाला सब मालूम पड़ता है। सब अपने अपने जो स्वभाव गुणधर्म छोड़ता नहीं है,
फिर भी विभाव का अभिनय करता है, तो ये हो गया आपका। हम्म, चंदा जी बात समझ में है ना, ये कंपाउंड नहीं हुआ है, मिक्सचर है। या या अब मिक्सचर को आप कंपाउंड मानेगा तो दिक्कत पड़ेगा। या या फिर भी बहुत से ऐसे कर्म है मनुष्य अवतार में, है मिक्सचर लेकिन कंपाउंड जैसे लगता है, तो आपको तिर्यंच में जाके उसकी निद्रा करनी आनी होती है, फिर वापस मनुष्य में आते हैं। मनुष्य अवतार में इतने खराब कर्म करते तो नरक में जाते हैं, तो वहां से वो निद्रा होती है। मनुष्य अवतार में निद्रा नहीं होती है, वहां निद्रा होके फिर मनुष्य में आता है। बहुत से ऐसे कर्म हैं, तो देवगति में जाने का तो कंपाउंड जैसा लगता है लेकिन वो मिक्सर है, वहां जाएगा तो कर्म की निद्रा हो जाएगी। और ज्ञानी मिल गया, जिन और जिनेश्वर मिल गया, तो आपको सेपरेट करके दे देगा, या फिर आपको अलग ही करना पड़ेगा नहीं, या जुदा पड़ने का प्रयोग भी करना नहीं पड़ेगा। खाली समझ समझ करना है, प्रश्नोत्तरी करके समझ करना है, और कुछ नहीं है। सबसे ब्यूटीफुल ये प्रयोग है कि जुदापने की जागृति की कोई नहीं, अपने तो जुदा पड़ने की करने के सबका गुण धर्म जान लिया है, ये अपने आप जुदा हो गया। ओके गेहूं को जानते हैं कि नहीं जानते, या कंकर को जानते कि नहीं जानते, या तो उसके रूप से जानते कि गुण धर्म से जानते हैं, गुण धर्म से बस हो गया अलग। या उसको फिर अलग जुदा पड़ने की मेहनत न करने की नहीं है, गधा मजूरी नहीं करने की है, या सबका गुण धर्म जान लो। या तो चरण विधि में सबका गुण धर्म बताया, आत्मा का गुण धर्म बताया और अनात्मा का गुण धर्म बताया, हाँ। उस हिसाब से आवश्यक विधि बोली है। आज अभी कराई, आप थे कि नहीं थे, हाँ थे तो ये आवश्यक विधि है, या समझ में ने। या जब खाना आप भूल जाते हैं तो ये विधि नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन खाना भूल नहीं जाते तो ये विधि भी नियमित रूप से करना है, तो ये भेदांकन है। या ये होगा तो फिर आपको क्रोध मान माया लोभ है, राग द्वेषी, अज्ञान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, कोई आपको तंग नहीं करेगा। या बात या। समझ में है कि नहीं है? या। और तो वहां तक आपकी समझ नहीं जाती है। या बात समझ में है ना? सही बात है तलवार और पॉइजन का डर लगता है कि नहीं लगता है? या क्यों डर लगता है? तलवार और पॉइजन का डर क्यों लगता है आपको? क्योंकि पुद्गल के पक्ष में पुद्गल के पक्ष में नहीं है, उसका गुण धर्म ऐसा है कि उसके परिचय में आवे तो आप मर जाएंगे ना, आपको मरना नहीं है। या समझ में आने? या अब उसका डर मेरे को निकाल के बता दो। या 360 डिग्री हो गया, गरबा हो गया। बस ऐसे ही मेरा क्वेश्चन है, जैसे वो गोधर्म हमको डरा देता है ना, बिच्छू का नाम देते ही डरा देता है, नींबू का नाम देते ही हमको खटास आ जाती है, वैसे हम आत्मा बोले और उसका मिठास, उसकी शक्तियाँ, वो आत्मा वो बोलने नहीं की चीज नहीं है, समझने की चीज। समझने के प्रयोग करने के बाद आत्मा बोलेगे तो चलेगा। कि मेरे को तलवार और पॉइजन का डर निकाल के बता दो। ओके कैसे जाएगा तलवार और पॉइजन का डर? उसके गुण धर्म मालूम है ना, कि उसके Yeah. परिचय में आएंगे या तो आम तौर पे आप मर जाएंगे। या अब उसका डर निकाल के मेरे को बता दो। सामयिक अपने बैठे बैठे हो गया, या अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे जाएगा? तलवार और पॉइजन का डर निकाल के बता दो, पूरा आपके- दृष्टांत दे के। दृष्टांत देखिए, आपसे ही जो अभी सुना था और दादा भगवान से सुना है कि अपने को ज्यादा किसको हो रहा है, चंदाबेन को हो रहा है, मेरे को नहीं, तो वो उसका असर नहीं, इससे नहीं जाएगा। तो इससे नहीं किससे जाएगा, जाएगा? इससे नहीं जाएगा। तो कि ये तलवार और पॉइजन का डर लगता है, तो कोई आपको ज्ञान है तो ही डर लगता है ना। या तो वो ज्ञान अंश ज्ञान है कि सर्वांश ज्ञान है? अंश यानी हाँ लिमिटेड जो कि बिंदु जैसा, या बीज जैसा, या और सर्वांश है पूनम जैसा। या तो अंश ज्ञान है कि सर्वांश से डर लगता है, तो अंश अंश ज्ञान है। या। अब अंश ज्ञान क्यों है वो भी समझना पड़ेगा नहीं। वही तो समझने तो के के लिए मैं ही चंदा जी हूं तो अंश ज्ञान हो गया, हाँ या समझ में आने? या और व्यवहार दृष्टि से मैं चंदा जी और निश्चित दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है तो सर्वंश हो जाएगा। या तो भी आपको ज्ञान मिला, और व्यवहार दृष्टि से चंदा बहन है और निश्चित दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, वो समझ में आ गया, हाँ तो सर्वांश ज्ञान हुआ। या तो वो अभी आपको डर नहीं लगेगा। कैसे? या तो कि तुरंत आपको एज इट इज दिखेगा। या समझ में आने? वेरी ट्रू तो कि तलवार और पॉइजन मार तो डालता है, लेकिन स्वतंत्र मारने की शक्ति कितनी है उसकी? नहीं है बिल्कुल नहीं है।
राइट वो तलवार दौड़ के आके सर और धड़ के बीच में आके काट देगा? नहीं तो पॉइजन दौड़ के आके मुंह में गिर जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं तो ये आपने कैलकुलेशन, ये उसकी गुण धर्म जानते थे कि नहीं जानते थे? नहीं ये तो दादा स्वतंत्र मानने की शक्ति नहीं है। या फिर वो जो तलवार और पॉइजन है, जड़ है कि चेतन है? जड़ है और आप जड़ है कि चेतन है? चेतन है तो शक्तिशाली कौन है, जड़ है कि चेतन है? चेतन है या डर निकल गया। या गुण धर्म से जानना है बस। अलग मेरे को अलग पाड़ने की जरूरत नहीं है। पराक्रम भाग खुला हो गया है, पुरुषार्थ वाला भाग निकल गया। पुरुषार्थ में तो कहीं उल्टा उल्टा घूम जाते हैं, राइट हाँ गोल गोल बात बुलाते हैं। आप तो गोल गोल हो जाते, मेरे को भी गोल गोल बना देते हैं। नहीं 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 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ वो जड़ है, वो शक्तिशाली नहीं। आप चेतन है, शक्तिशाली है, लेकिन आपको ही आपका गुण धर्म मालूम नहीं है। राइट और तलवार और पॉइजन का डर लगता है। वो कहते हैं ना, एक होता है दिया जो हवा से बाहर के संजोगों से फरफराता है, एक मशाल होती है जो कोई भी संजोग होता है उनको नहीं हिलाता है। तो आपका मशाल की तरह निश्चय पक्का है, लेकिन नहीं, मेरा मसाल बसाल नहीं, वो अलग ही है। वो तो चलेगा ही नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ चलेगा ही नहीं। हमारा वो सब है ना, वो दरिया में डाल दो। आपका लोभ हो गया, दरिया में डाल दो, नहीं करे वो दिक्कत पड़ जाएगी। ओके कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा। ओके ये लोभ की बात करेंगे ना, मसाल की बात करेंगे। मसाल नहीं है, ओके ये तो परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। या मसाल तो बहुत स्थूल भाग है। नहीं, अब हमारा निश्चय डगमटा क्यों है? नहीं, ये वो तो गलत समझ को सही समझ मान लिया, उस हिसाब से दिक्कत है। हाँ अभी समझ में भी आया? निश्चय अभ्यास कम 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 है हमारा हाँ, अभ्यास कम है। पांच आज्ञा के गोठनी कम, ये वीकनेस। नहीं, ये पांच आज्ञा के उठने अपने तो प्रश्न करने का। ओके प्रश्न करेगा तो सब पांच आज्ञा भी सही हो जाएगी। और वो जो आपको जो जो है ना, जो अपने जो छूटापने का प्रयोग है, वो सब सही हो जाएगा। समझ सही हो गई, हाँ। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि बन जाएगी, बनानी नहीं अच्छा। पड़ेगी। प्रश्न करने का आपको, और लेकिन जेन्युइन करने का। पहले आप अपने प्रयत्न करने के बाद जो आंसर नहीं मिलता है, वो सही प्रश्न है। हाँ, बिना प्रश्न वाला अपने आप को प्रश्न नहीं करेंगे और सीधा पूछेंगे तो हमारा आंसर भी आपको भारी लगेगा। पहले आपको प्रयत्न करना है, ओके और प्रयत्न करने के बाद वो जो प्रश्न रहे वो प्रश्न करेगा तो मैं जो एक दो पल में आपको आंसर दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। सही बात है। लेकिन आप अपने पुरुषार्थ करते नहीं, वहाँ बिखर ही जाते हैं, वहाँ बैठ ही जाते हैं। देखो, मैंने तलवार का पॉइजन का डर निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? या अणुबॉम्ब का डर लगेगा कि नहीं लगेगा? अनुभव का अणुबॉम्ब बॉम्ब नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा ना, बस हो गया काम। कि जो डर गया वो मर गया। समझ में आने? तो आत्मा मर जाता है क्या अहंकार मर जाता है? अहंकार मर तो आपका डर निकल गया, अहंकार चला गया। अभी मन बुद्धि चित्त अहंकार रहा नहीं, क्रोध मान मायालो भी रहा नहीं, अज्ञान भी नहीं रहा, राग द्वेष भी नहीं रहा। फिर उससे आधार पे जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बनती है वो भी सही हो गई। या डर निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल तो गया। जो डर गया वो मर गया। या बात समझ में आना? या तो मैंने डर निकाल दिया ना, तो थोड़ा ही डर निकाल के पूरा निकाल दिया पूरा निकाल दिया। 100%। या भरत भाई, बैठ का इतना भय किससे नहीं लगता है? बैठ का ऐसे संजोग आते ही नहीं और डर नहीं लगता है। डर लगता है अपने जो अभ्यास में जो कचाश है ना, को मोक्ष मार्ग हमको लंबा कर वो देगा। अपने अपने हिसाब से चलते ना, इससे डर है, बाकी है ही नहीं। ओके सारा अपना स्वतंत्र जगत है। ओके समझ में ना? आपका स्वतंत्र, आपके आपके जगत में भगवान की कोई दखल नहीं है। ओके आपको छूटना है हाँ तो भगवान भी बांध नहीं सकते, आपको बंधना है तो भगवान भी छुड़ा ना सकते। यानी आपका स्वतंत्र जगत है। या समझ में? या अब आप बंधे तो अपने अज्ञान से बंधे हुए हैं। या समझ में आया क्या नहीं? या तो ये अज्ञान निकल गया तो बंधन से मुक्त हो गया। या तो ये दादा ने बताया था कैसे अज्ञान से बंधे हुए। हाँ तो दादा तब भादरण में रहते थे हाँ और कामकाज भी सब गांव में होता था। या तो वो गांव में बंदर आते थे ना, तो वो शिकारी उसको पकड़ते थे, तो वो सब देखा था। या तो जो पेड़ पे बंदर होते हैं ना, तो वहाँ नीचे गड्ढा खोलते हैं सब। राइट तो उसको मालूम है कि 50-100 बंदर है। या बात समझ में आ कि नहीं? यहाँ या तो उस तरह से गड्ढा खोलते हैं जमीन के ऊपर। या उसका मुंह है ना, वो आगे वाला मुंह छोटा संकरा होता है और अंदर वाला मुंह बड़ा होता है। या फिर जमीन पे थोड़े चने डालते हैं और अंदर जो है ना,
वहाँ चने जाने ज़्यादा डालते, फिर चला जाता है पान के गल्ले पे या चाय की किटली पे। अब वो बंदर है तो देखेगा का तो नकल करेगा ने, एक बंदर नीचे उतरेगा, फिर देखेगा चना है तो जमीन वाला चना खाएगा तो सभी बंदर फिर देखेगा तो उतर जाएगा। अब जमीन वाला चना सब खा लिया, अब शुरुआत में खाएगा तो और खाने का मन होता है, तो वो गड्ढे में उसकी नजर जाएगी, वो चने लेने जाएगी, हाथ डालेंगे अंदर, फिर पकड़ेगा तो ये बंदर चेंज हो गया, तो निकालने जाएगा तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। हाँ। तो किसने पकड़ा? वो गड्ढे ने पकड़ा, नहीं चने ने पकड़ा, नहीं शिकारी ने पकड़ा, नहीं किसने पकड़ा? स्वयं के मुट्ठी छोड़े तो लोग छोड़े तो तो कि नहीं, ये किसने पकड़ा? उसके लोभ ने पकड़ा तो छोड़े। कि लालच बुरी बला है, लालच ने पकड़ा। हाँ हाँ समझ, लोभ और लालच है उसने पकड़ा, बात समझ में ने? हाँ हाँ तो वो अब लालच ने पकड़ा, लालच बुरी बला है उसने पकड़ा, राइट तो वो शुरू का खाया ना तो लालच बढ़ी, और खाने का मन हुआ, या बात है ना? तो अंदर लेने गए, और जो लेते हैं तब बंधारण अलग है, या और लेने के बाद बंधारण अलग होगा, तो फिर हिलाएगा, तो उसको क्या साइकोलॉजी होगी कि भीतर से किसी ने मेरे को पकड़ा, भीतर से मेरे को किसी ने पकड़ा, लेकिन Yeah. किसी ने पकड़ा नहीं। राइट तो ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं? और पटेल वाले वो ज्ञानी थे, अंबालाल पटेल थे, तारा बापे નથી પકડ્યો, મહિના ચણા છોડી દેને કે हाँ પતિ કે બોલો આટલું જ અજ્ઞાન છે। या સાચું ને? એ અજ્ઞાને તમને દાદાએ લઈ લીધું છે, या પણ તમને બહુ જ વહાલું છે, બહુ જ વહાલું છે, या રાખજો તો માર પડશે, બીજું કશું નથી। या છઠ્ઠા આરામાં તો એનાથી વધારે માર પડશે, या પાંચમા આરામાં તો માર પડે છે, પણ છઠ્ઠા આરામાં તો બહુ માર પડશે। या એટલે જેટલું અજ્ઞાન વહાલું છે એ અજ્ઞાન છોડી દેજો। या ચંદાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? Yeah. જો કોઈ પકડ્યો છે, शिकारी ने पकड़ा है, नहीं तो लालच चने ने पकड़ा है, लालच ने। अब Yeah. लालच क्यों है? Yeah. अपने आप को पहचानते नहीं है और पर को अपना स्वरूप मानते हैं, तो लालच खड़ी हो गई। हाँ वही तो बोलते हैं कि अपना सुख इतना है, हाँ ये चने में सुख ढूंढने गया, विनाशी चीज में सुख ढूंढने गया। हाँ तो वही तो डिवैल्यूएशन नहीं होती है, लालच वहाँ चली जाती है। डिवैल्यूएशन कैसे होगी? अपने आप से आपको शादी में जाना है तो दीवार के सामने खड़े रह गए तो तैयार हो पाएंगे? नहीं तो आपको तैयार होना है तो मिरर चाहिए। या तो ये जो वैल्यू की है उसकी डिवैल्यूएशन करना, तो मिरर जैसे शुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष, तीर्थंकर परमात्मा चाहिए। या लेकिन वहां जाते नहीं है, और जाते हैं तो अपनी अपनी पिपुड़ी बजाते हैं, बस स्वच्छंद वाली पिपुड़ी बजाते हैं। बुद्धि Yeah. मेरे को तंग करती है, अहंकार मेरे को तंग करती है, मन मेरे को तंग करता है, चित्त Yeah. मेरे को तंग करता है, बस वही बात चलती है। या बात समझ में आने? या एक दर्पण के सामने जाते तैयार होते कि नहीं होते? होते और हैं शादी में सब तारीफ करते हैं, हो चंदाबेन बहुत अच्छे दिखाई देते, या आप तो हीरोइन जैसे, आपको तो पिक्चर में लेना पड़ेगा। या और दीवार के सामने तैयार हो गए तो कोई भी आपको देखेंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं। राइट तो ये व्यवहार में तैयार होने के लिए मिरर की आवश्यकता है, तो एब्सोल्यूट होना है, सभी बंधन से मुक्त होना है। तो ऐसे मिरर जैसे जीन और जिनेश्वर ढूंढना पड़ेगा, और Yeah. मिल जाए तो दो हाथ जोड़ के परम विनय और मैं कुछ भी नहीं जानता ये भाव समर्पित करेंगे, Yeah. सब कुछ दे देगा, या और आपको दे भी दिया है। या या लेकिन वो अध्यास है आपका। वो आश्चर्य ये है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी पहले क्रेमिक मार्ग से हुई, जहाँ एक एक शब्द गिनी की तरह लिया था, और वहाँ अक्रम में आके सब वो छोड़ना पड़ता है। वही जो मैं भी एक क्रमिक मार्ग में था, तो मैं वो- जैन था, दीक्षा लेने वाला था, अब कितना पढ़ा हुआ, या लेकिन दादा ने मेरी टायर में हवा निकाल दी। ओ लेकिन अभी आपकी हवा वो निकलती है फिर भी भरते हैं वही की वही नहीं हवा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपको फर्क है कि आपको दादा भगवान मिले, ज्ञानी पुरुष मिले, तो एक होता है कि उसके आगे सरेंडर भाव होता है। लेकिन आजकल की इतना सोशल मीडिया वगैरह ये है ना, अहंकार इतना मोटा है ना, अगर आप थोड़ा गुस्सा करो तो आएगा नहीं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, एक पुत्र नहीं तो दूसरा, तो हमारा अहंकार है ना वो खत्म नहीं होता है। नहीं, और अहंकार चला गया है, इस हिसाब से तो मैं आपके साथ ऊंची आवाज में बोलता हूँ। ओके अहंकार चला गया है आपका, बात में खींच के लाना है तो भी आएगा नहीं, अहंकार चला गया है। अहंकार खत्म होता तो एक भी क्वेश्चन नहीं होता, बुद्धि खत्म नहीं, होती वो तो भरा हुआ माल है ना, वो परंपरा वाला। हमको तो क्या हुआ था, ज्ञान लेने के बाद पकड़ा था, मेरे को और कुलदीपक भाई को दोनों को पकड़ा था। मेरे पिताजी है, मेरे मदर है, मेरे भाई है, उसको नहीं पकड़ा था, हमको पकड़ा था। देखो
आपको दादा का ज्ञान एज इट इज चरितार्थ में लाना है, चारित्र में लाना है, तो ये जैन पुद्गल छोड़ना पड़ेगा। ऐसा दादा ने हमको बोला था ज्ञान लेने के बाद। ओके। ये जैन पुद्गल छोड़ना पड़ेगा तो ही ये चरितार्थ होगा, निकल चरितार्थ नहीं होगा। हाँ। तो वहीं निकल गया। राइट। अब ये देखो मेरी सहेली जैन नहीं है कि है भरत भाई, नहीं। मेरे लिए नहीं है। मैं प्रवचन नहीं देता हूँ, नहीं तो दादा नहीं था तो बहुत प्रवचन देता था, टोले टोला बन जाता था। या अभी कोई है ही नहीं, मेरी सुनने को कोई तैयारी नहीं है, भाग जाते हैं सब, राइट। सब डरते हैं। लेकिन मेरे को फायदा हो गया, या ब्रह्मचर्य में मेरे को बहुत हेल्प करता है। सब मेरे से दूर भागे, आवे तो मेरे को कुछ गलत हो जावे ना, राइट। और मेरे से अंतर रखे, या काम बन गया कि नहीं बन गया बोलो। या और मैं बक बक करता तो कितने लोगों को मेरे का मोह खड़ा हो जाएगा, या घूमते रहेगा। मैं कितना छूटने की कोशिश करूंगा, ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, लेकिन पालन ही नहीं हो पाएगा। या तो देखो मेरे को दादा ने इजीली कर दिया है, ये जैन पुद्गल छोड़ना पड़ेगा, तो शैली चेंज हो गई। या अगर प्रवचन करना, व्याख्यान करना, लिखना, गाना सब था, लेकिन सब बंद हो गया। या समझ रहे ना? या परंपरा तो अब दीक्षा लेने वाला कितना अभ्यास किया होगा। आपने दीक्षा लेने वाली थी, हम तो दीक्षा लेने वाले थे, कितना अभ्यास होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? या लेकिन वो सब हवा निकल गई, फिस्ट हो गया, या बोलती बंद हो गई हमारी। या तो अभी बोलते कि भी आप परेश भी जैसे बोलो, निमिष भी जैसे बोलो, शैलेश आनंद जी जैसे बोलो, दीपक आनंद, लेकिन आता ही नहीं है। बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन आता ही नहीं है। या लेकिन फायदा हो गया, अंतर हो गया। या कोई मोह वाली चीज मेरे सामने आती ही नहीं है। राइट। तो मेरा ब्रह्मचर्य पालन करने का अच्छा हो जाए कि नहीं हो जाए कुछ। अभी सरवी बेन ने बोला था, नहीं पिला वो हरेंद्र भाई ने बोला था, क्या मेरा जयमेश भी के पास कोई जाते नहीं है, आराम मिल जाता है, और निमेश भी को तो अभी लॉक करा दो, ऐसा बोला था ना। बोलो कितना फायदा हो गया मेरे को। अब भाई ये माया नगरी है, मोह नगरी में है, लेकिन कोई मिलने नहीं आता। मैं तो बच गया कि नहीं बच गया? हाँ क्या बोलते हैं हरेंद्र भाई? हाँ जयमेश आनंद जी, हाँ अभी भरत भाई का एक पद सुनेंगे। हाँ, सुनेंगे, उनके सुनेंगे। बहुत सवाल है, दो सवाल हाँ, रोज हाँ, उसको पूछो, इसलिए मंगलवार तक सब क्लियर हो जाएगा। જયમેશ આનંદજી હા. એ ચંદ્રાબેનને ભગવદ્ ગીતા અને એના ઉપરનો અભ્યાસ વધારે છે હજી પણ. બરાબર છે। એમની પર એની એટલે થોડીક શૈલી ઈ ભગવત પર જાય છે. હા એ જાય છે, પણ અત્યારે બધું और सब समाधान होगा कि नहीं हो गया? या बहुत अच्छी तरह हो गया। बहुत अच्छी तरह होगा। मैं परीक्षा में पास हो गया कि नहीं पास हो गया? पास हो गए। पास हो गया। अभी मेरे को जॉब मिल जाएगा, पगार वाली जॉब मिलेगी, अप्रेंटिस वाला नहीं थैंक मिलेगा। यू थैंक यू। आपसे भय भी लगता था, उसके लिए प्रतिक्रमण और वो भी निकल गया। थैंक यू। ચાલો ભરતભાઈ, પદ જય ગાઓ. સચ્ચિદાનંદ।